श्री अकाल, मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉम्ब कनेक्शन पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं सिद्धू मूसेवाले के गाने पर जिसका नाम है ईस्ट साइड फ्लो। इसे गाया है सिद्धू ने, फीचर कर रहे हैं सनी मल्टोन और म्यूजिक दिया है बिग बायर्ड ने। वीडियो है बाय टेगी। लेट्स डू दिस। बहुत साल हो गया है कि मैंने सिद्धू के किसी गाने पे रिएक्ट किया है। आई रिमेंबर मेरे चैनल पे सिद्धू के बहुत सारे गानों के रिएक्शंस हैं। अगर आप लोगों को चेकआउट करना है तो मेरा पंजाबी रिएक्शन वाले प्लेलिस्ट में जाइए। पिछले 6 से 7 साल से मैं सिद्धू के बहुत सारे गानों पर मैंने रिएक्ट किया है एंड आई यूज्ड टू बी ह्यूज फैन एंड सो सैड दैट वी लॉस्ट सच अ ग्रेट सिंगर एट सच अ टेंडर एज। आई जस्ट होप कि उनकी म्यूजिक के थ्रू उनकी जो हेरिटेज है, उनकी जो उनका जो प्यार है वो बरकरार रहेगा। एंड yes, let's listen to this and celebrate him. Here's my reaction in 3, 2, 1, go. I hope the titles है यहाँ पे। Yeah. You know what it is? Big Bird. Brown boys. Woo. Yeah. ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀ, ਤਣਕਾਇਓ ਕਾਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੀ। ਕਹਿੰਦਿਆ ਸੀ ਖੜ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਚੜੇ ਆ। ਬੋਟਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਛੱਡੇ ਸਭ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਬੈਗ ਬਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਹੁਣ ਬਿੱਟੀ ਬਿੱਟੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਚਿੰਤਾ ਚ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਟੇਕਰ ਭੂਤ ਹੀ ਕਢੋਤੀ ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਏ ਹੱਲਾ। ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਆ ਕੱਲਾ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਰਾਸ ਆਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪੱਕਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੱਗਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਰੌਂਗ ਲੁੱਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਖੀ ਲਿਓ ਫੇਮ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਐ, ਧਮਕੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਐ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਐ, ਵੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀਨਾ ਮੇਰਾ ਛਿਲਦੀ ਐ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਕਾਰ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਪੁੱਠਾ ਡਾਊਨ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠਾ, ਵਾਂਗ ਚੱਕਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਸਵਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਫੇਮ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੇ ਮੇਰਾ ਪੱਲਾ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਆ ਕੱਲਾ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਕੀਤਾ ਨੀ ਟਰਸਟ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰਾਂ ਮੇਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਵਰ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੇਰੇ, ਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਉਹ 11 ਮੇਰੇ 11 ਮੇਰੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਈਪ ਮੈਂ, ਬਾਦੇ ਸੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਪਾਈ ਨੀ ਸਨੈਪ ਮੈਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕੀਤੇ ਨੀ ਅਟੈਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਥੋੜਾ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਮੈਂ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਭ ਇਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੇਰਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੱਕ ਆਫ ਗੋ ਟੂ ਹੈਲ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਖਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਆ ਕੱਲਾ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬੈ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ
ਜਾਓ 5-6 ਛਲਾਰੂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ खड़े ਆ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ जो करना। क्यों जी? मुझे क्यों गूज़बम्स आए, क्योंकि जो गाने में बताने की कोशिश कर रहे थे, जितना मुझे समझ में आया वही उनके साथ हुआ। क्योंकि मैंने एक ट्रेंड देखा है कि पंजाब में जब भी कोई एक सिंगर कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज को लेकर गाना बनाता है ना, तो उसके खिलाफ लोग हो जाते हैं, गैंग्स बनते हैं, मॉब्स बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आगे तक नहीं चल पाती है, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की जाती है। ये मैंने वो मूवी अमर सिंह चमकीला को देख के भी मुझे ये पता चला। वो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को लेकर गाना बनाते थे, लड़कियों के बारे में गाना बनाते थे, उनके बॉडीज़ को लेकर एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई हिज लाइफ वाज फेल शॉर्ट एंड ही वाज शॉट डेड। जस्ट लाइक दैट सिद्धू के साथ भी वही हुआ। एंड जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो अपने गानों में यूजुअली गन्स के बारे में, गन वायलेंस के बारे में बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे थे। इससे पहले मैंने रिएक्ट भी किया है एंड उसको लेकर बहुत जगहों पे लिखा भी जाता था, बहुत टैबलॉइड्स, बहुत न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में बात की जाती थी। लेकिन पीपल ना उसका बुरा साइड देखते थे, जो कि गंदा साइड है। इन सब गानों का जो बुरा साइड है, जो अच्छा साइड है, वो कोई देखता नहीं था। वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि घर पे बैठकर ताना मारना, किसी चीज़ को लेकर बात करना बहुत आसान होता है, और एक्चुअली उस चीज़ को लेकर किसी मतलब एक इम्पैक्ट क्रिएट करना वो एक अलग बात होती है। मतलब इतना आसान नहीं होता वो। तो वो सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के थ्रू करने की कोशिश कर रहे थे, और उनके गानों पे शायद गन्स दिखाया जाता है, वायलेंस दिखाई जाती है, लेकिन वो यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स नॉट द राइट थिंग। आई मीन दिस शुड बी रिड्यूस्ड इन कंट्रीज। एंड जिस तरीके की आज़ादी, खुली आज़ादी दी गई है गन्स को यूज़ करने की, कोई भी गन उठा के खून कर सकता है। तो स्पेशली पंजाब के, मतलब हरियाणा, पंजाब, इन जगहों पे बहुत ही ज़्यादा ये सब होता रहता है। एंड इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, कोई भी गन उठा के किसी को भी मार सकता है। एंड इट्स वेरी डेंजरस। ओके, चंबल अनदर प्लेस। सो आई थिंक इट्स वेरी आयरॉनिकल दैट उन्होंने गन वायलेंस के बारे में, इस बारे में बात की है कि उनको हमेशा थ्रेट्स मिलते रहते हैं। उनको कोई बोलता है कि सीने पे, छाती पे कभी भी गोली चल सकती है, उनको ऐसे थ्रेट्स मिलते रहते हैं। एंड इट हैपेंड इन द फ्यूचर। इट्स सो सैड। इट्स लाइक ही न्यू दैट हिज फ्यूचर वॉज इन डेंजर। उनको हमेशा से पता था कि उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, उनकी ज़िंदगी हमेशा खतरे में। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता एक सिंगर ऐसे एटमॉस्फेयर में जी रहा है जहाँ पे उनको पता है हर एक टाइम उनकी ज़िंदगी खतरे में है, उसको जानते हुए भी अपना गाना कंटिन्यू करना, अपना करियर कंटिन्यू करना है। एंड इवन आफ्टर डेथ ही हैज़ रिलीज सॉन्ग्स दैट इज सो पावरफुल, सो इम्पैक्टफुल। दैट सेज अ लॉट अबाउट द कैलिबर ऑफ दिस सिंगर in such a tender and young age. He was only 27 when he died, right? Very powerful. I love the fact that वहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी दिए गए हैं पास में, जहाँ पे उनकी सारी जर्नी, उनके साथ साथ जो हो रहा है, जो कंट्रोवर्सीज में वो फंस गए थे, उनके बारे में भी छोटा छोटा न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी जारी है। आई विश सबटाइटल्स दी होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पंजाबी गानों में कि उनके सबटाइटल्स नहीं रहते। तो मुझे जितना समझ में आता है गाना सुन के, कुछ इधर उधर के वर्ड्स एंड ओवरऑल जो देख के मुझे पता चलता है, मैं उसको समझ के डिसाइफर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर सबटाइटल्स होते तो बहुत अच्छा होता है। ये मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है पंजाबी सिंगर्स को, हर एक आर्टिस्ट को, कि प्लीज़ आपके गानों पे सबटाइटल्स दिया करें। क्योंकि जो लोग दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे मैं, मतलब हिंदी में मुझे बात करनी आती है, बंगाली आती है और इंग्लिश, तो इन तीनों लैंग्वेजेस के अलावा मुझे और कुछ नहीं आती। तो पंजाबी जिनको पता नहीं है उनके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल द इम्पैक्ट ऑफ द सॉन्ग वाज रियली पावरफुल। हिज वॉइस इज अमेजिंग, ऑलवेज इट विल बी रिमेंबर्ड फॉर बीइंग सो डिफरेंट एंड सो यूनिक एंड सो पावरफुल। नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए आप लोग के थॉट्स क्या है, और क्या मैंने कुछ हद तक ठीक बोला, क्या मेरे थॉट्स सच हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इस ऐप पे आप बैठिए, आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाओ।